Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Math. So we have completed up to story sum. So let's start our new topic, that is railway and airlines timetable. So we already study about it, that if we want to plan a journey, you need the train or flights running between your city and your destination, then departure and arrival time, then the distance between two cities. Okay, नेक्स्ट, अब टाइम टेबल में रेलवे का टाइम टेबल पीछे हमें दिया है, तो एक बार हम वो फिर से रिवाइज करेंगे. तो उससे पहले जस्ट टेक लुक एट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द टेबल हैज टाइटल इंडिकेटिंग रूट्स दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, मुंबई, वीटी. द कॉलम 6 shows various stations on the route. Column 1 shows the distance of various stations from Delhi to route. Column 2 to 5 shows the train their timing, various stations, direction Delhi to Mumbai. This is called the downward direction. This is called down train. Okay, so column 7 to 10 shows the timing of arrival and departure from various station upward direction, and they are called UP, that is down up train. Okay, then all trains routes have numbers. It indicated in the row below. There are 4 trains which numbers are 2628, 4678, 1038, 1058. They are the DN train, that is down train. Then 1037, 1057, 4677, 2627 are the up direction trains. Fine. So let's start about this timetable. Okay, so first of all, see the stations from where to where it go. From Delhi to Agra, फिर ग्वालियर, फिर भोपाल, for Bombay VT. Then this first column gives the distance of the stations from Delhi. ओके, दिल्ली का 0 है. फिर अगर हम हजरतुद्दीन निजामुद्दीन लिए तो वो कितने हैं, 145 पे है. देन मथुरा 199 पे है. देन आगरा कैंटीन 317, ग्वालियर 414, देन झांसी 567. गेट इट. चलो, और ट्रेन कौन कौन सी है देखो, 2628, 4678, 1038, 1058. तो मोस्टली उनके नाम दिए हैं. इस ट्रेन को नाम है एक्सप्रेस. देन दिस इज मुंबई जम्मू तवी पुणे एक्सप्रेस. इट इज पंजाब मेल अमृतसर दादर एक्सप्रेस. अब देखो यही ट्रेन रिटर्न में 1037 पंजाब मेल दादर अमृतसर एक्सप्रेस, देन पुणे जम्मू तवी एंड express. So see here the names 1037, 1058, then 4677 and here 2627. ठीक है. अब सॉरी, ये स्टेशन वाला कॉलम देखिए, तो इसमें हर स्टेशन का नाम लिखा है. ओके, दिल्ली से मुंबई वीटी तक. ओके, अब देखो इसके सामने एडी लिखा है. दिस इज ए एंड दिस इज डी. दिस इज फॉर दिस ट्रेन. ओके, सो ए स्टैंड फॉर अराइवल एंड डी स्टैंड फॉर डिपार्चर. ओके, ए मतलब जब वो ट्रेन आती है, डी म्हणजे डिपार्चर मतलब वहां से निकलती है. ठीक है. सेम हियर दिस अराइवल डिपार्चर इज गिवन फॉर दिस ट्रेन. ओके, सपोज ग्वालियर में देखो, ग्वालियर में ये ट्रेन कब डिपार्चर होती है, 14:15 पे. बस आती कब है ये, 14:05 पे. ठीक है. नेक्स्ट. Okay, so this is all the information given here. And one more important thing, see the timing. It is not 12 hours, it is 24 hours time, right? So let's start. From the above timetable, find a distance between. See here the distance between Jhansi and Gwalior. So we have to subtract 567 minus 415, we get 153. So such we can calculate the distance between two cities. Okay, so according to this timetable we have to take the train. Okay, here is the train number given, it is the station's name given, and we have to write we have to observe in timetable and write the time, arrival time and departure time. Suppose we are taking this train 1037 मथुरा का अराइवल टाइम. कौन सी ट्रेन है हमारी, 10
1037, देखो 1037 कहाँ है, 1037 ये वाली, ठीक है। मथुरा में कब आती है, देखो मथुरा कहाँ है, मथुरा, मथुरा ऊपर है, मथुरा ये रही है ना। मथुरा में कब आती है, 17:20 पे। तो सी हियर, ओके, यहाँ 17:20 है, वो थोड़ा सा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा आपको। ओके, तो लेट्स सी इटारसी डिपार्चर टाइम, और ट्रेन कौन सी है, सेम, दैट इज 1037। इटारसी से कब निकलती है, लेट्स सी 1037 कौन सी वाली ट्रेन है, देखो ये वाली है ना, 1037, तो इटारसी, ठीक है, वो कब निकलते हैं, मतलब डिपार्चर टाइम, इट इज 5:20। सी हियर, इट इज 5:20। ओके, अब ये हो गया ट्रेन का। अब फ्लाइट का देखो, इट इज सो इजी, यहाँ फ्लाइट के नेम्स दिए, फ्लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, कभी डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम दिया तो आपको क्या निकालना है, फ्लाइट का ड्यूरेशन, और अगर फ्लाइट ड्यूरेशन अराइवल टाइम दिया तो डिपार्चर टाइम कैलकुलेट करना है। सपोज वी टेक द थर्ड एग्जांपल, AL776, बेंगलोर से गुवाहाटी जाने वाली ये फ्लाइट है, ये आती है 10:50 पर, और उसका ड्यूरेशन है 2 hours 55 minutes। अब देखो 10:50 पे वो पहुंचती है, मतलब निकलती कितने बजे, तो आप क्या करना पड़ेगा इसमें, सब्ट्रैक्शन। सो सी हियर आई हैव डन हियर, सो 50 में से 55 नहीं जा सकते, सो वी हैव टू टेक कैरी हियर, 10 कट, इट बिकम 9, सो 60 प्लस दिस 50 वी बिकम 110। सो ये इसमें से 110 में से 55 माइनस हो गए तो 55 बचे, और 9 माइनस 2 7, 7:55। ओके, so the time will be 7:55 AM. Okay, fine. So in this way we have completed our chapter time. So it is very easy chapter, but you have to practice the addition and subtraction of time carefully. ठीक है, मैंने बहुत बार समझाया है, रिवाइजन में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रिवाइज किए, तो अच्छे से वो रिवाइज करना, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको टाइम चैप्टर में, ठीक है। और जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से याद करना। सो वी विल स्टार्ट टुडे आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म। हमें जो जानकारी दी है वो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। नाउ सी हियर, in recall exercise, before recall exercise, what we have to learn here, we learn here pictograph, bar graph, circle graph, line graph, okay, and draw graphs represent the simple data। छोटे छोटे जो डाटा दिए वो कैसे अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर खुद ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइन, the names of the students in Adarsh Primary School who got 100 marks in mathematics are, मैथमेटिक्स में आदर्श प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, तो उनके नाम यहाँ लिखे हैं, 1st to 5th बच्चों के, देखो इनके नाम पूरे लिखे हैं। अब ये जानकारी हमें क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सपोज वी विल रिप्रेजेंट इट इन द टैबुलर फॉर्म। ओके, सो इफ दिस इज द टैबुलर फॉर्म। अब ये टैबुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, तो पहले तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे, राइट। उसके बाद टैली मार्क्स, तो टैली मार्क क्या होता है, टैली मार्क इज दिस वन स्लैटिंग लाइन रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट, ठीक है। जब हम 4 क्रॉस करते हैं, मतलब 4 स्टूडेंट हमारे हो गए और 5th वाला हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिप्रेजेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, 5th लाइन मारने के बजाय हम उसको ऐसे ग्रुपिंग करते हैं, ऐसे स्लैटिंग लाइन करते हैं, तो ये हो गया 5 का ग्रुप और 1 एक्स्ट्रा, दैट इज मीन्स 1 2 3 4, और ये स्लैटिंग 5 हो गया, और ये 6 इज 6। गेट इट, समझ में आया सबको? ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास का देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो पहले मैं आपको कॉलम समझाती हूँ। फर्स्ट इज क्लास, देन सेकंड इज टैली मार्क्स। टैली मार्क्स समझ में आया? अब टैली मार्क्स का टोटल जो होता है वो हमें क्या करना है, नंबर्स में लिखना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द एग्जाम्पल केयरफुली, अच्छे से सब पढ़ो एक बार।
ठीक है।